Good morning, students. Today we will begin our first class with the chapter which is known as How to Develop Ideas in a Paragraph. छुआ मैंने जिते बड़े भी तमें गोटे पैराग्राफ लिखुचो at that time what happens, there are certain sentences, किछि sentences आमो mind को आसे, yes or no. There are like magnificent ideas which comes to our mind, but आमर प्रॉब्लम कौन हुए, आमे अरेंज करि पारुना, आमे जानी पारुना जे आमको केते बेले को लाइन टा को भाबरे पुट करिबार अछि, yes or no. For example, if you are given a question answer, गुटे तुमको क्वेश्चन दिया हेछि, क्वेश्चन रे तुमको पचरा हेछि where does Ram stays, ठीक अच्छे. क्वेश्चन टा कौन, वेयर डज राम स्टेज, राम कोठी रहुची, यस और नो. तार आंसर टा कौन हम, ऑब्वियसली तुमको जो टॉपिक रु दिया है, जो पैराग्राफ रु दिया है क्वेश्चन टा, से पैराग्राफ रे ही तार आंसर टा अच्छी. तो जदि मते डायरेक्टली पचरा है जे वेयर डज राम स्टेज, सो व्हाट विल आई डू, I will write the direct answer, or I will begin with the fact that Ram is a boy, Ram is 5 years old, Ram studies in Sagar College of Science XYZ. No, because the question is where does Ram stays, yes or no. Ram rohuchi कोठी, तो तारो आंसर हमको डायरेक्ट लिखिबा को हबो Ram stays at Sunat, Diwanpatna Chak near Hanuman Mandir. This is an imaginary address which I created in my mind. किंतु जदि सेम क्वेश्चन तुमको कहजबो, मोर कहिबार माने होउची जेते बेले भी तुमको गुटे क्वेश्चन आंसर कला बेले you are given a particular sentence and you are only asked to write what particular question रे जो फैक्ट तुमको हाईलाइट करिया को कुहाई जे, जेमते ए क्वेश्चन ता कोन थिला, where does Ram stay, yes or no. क्वेश्चन कौन थिला, राम कोठी रहुची. तो मेन आइडिया कौन, उत्तर रे कौन हबो, राम रो सिचुएशन ऊपर हमको लिखिबार अछि. कौन लिखिबार अछि, राम रो सिचुएशन, से कोठी रहुची, सिचुएटेड, सॉरी से कोठी रहुची केवल, ना कि मते एक्सप्लेन करिवार अछि जे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज 5 years old. These all unnecessary datas are not to be included while giving a direct question answer. So whenever you develop ideas in a paragraph, you have to keep few things in mind. What are the few things? Number 1, direct answer. जहाँ पचरा हेची, you are supposed to write directly. Number 2, arrangement. What is the meaning of arrangement? The meaning of arrangement is arranging those specific ideas in your mind. What? Arranging those specific ideas in your mind. एटा को जिनसो रे arrangement, जमति के एडी question for example तुमको दिया है छि कोन, where does Ram stay, माने राम कोठी रहुची, yes or no. तो तुमको अरेंज करके कोन लिखिबार अछि, राम रो एड्रेस टा अरेंज करके लिखिबार अछि. फर्स्ट तुम्हें कौन लिखिबो, राम स्टेज एट जो एरिया, तापरे जो ब्लॉक, तापरे कौन लैंडमार्क. लैंडमार्क माने कौन, ता घर आखा पाखरे कोनोसी इंपोर्टेंट जगह अच्छी कि नहीं, जेमति कि कोनोसी दुकान किंबा कोनोसी टेंपल किंबा जोनोसी मस्जिद XYZ. ठीक अछि, हमें केमति अरेंज करूछु, फर्स्ट एड्रेस नीड्स टू बी अरेंज्ड इन दिस वे. फर्स्ट ब्लॉक, देन व्हाट, द प्लेस, देन the landmark, then the state, and then the district, sorry district, then the state. Sorry gala एमती arrange करके मु directly लिखी, बेटा मु कौन करली, arrange करली. So this is known as arrangement of ideas in your particular answer which you are supposed to write. Yes or no, बुझी हला. तापरे coming to the third point,
keep the ideas united. जहाँ पचरा है, for example, if I'm asked here, what is my question? My question is, where does Ram stay? Ram rahuchi kouthi? So at that time, I am supposed to only write the address or the place where Ram is staying. Yes or no? So at that time, I have to keep my ideas united. माने जिते बड़े मु तारो आइडिया टा लेखिबी, तारो आंसर टा लेखिबी, मु कौन करिबी जो एड्रेस टा लेखुची. फॉर एग्जांपल सी रहुची बालेश्वर रे, बट मु डिस्ट्रिक्ट चली जिबी भूल भाल लेखि देबी. Okay, for example, if a person is staying in Baleswar, I will write the address of Baleswar, but I will put the district as Baripada. So will it be a correct information provided? No. There is no united, there is no relation between the other two things which you have written. Address ta kona Baleswar lekhila, block pokai dela, district pokai dela kona Baripada. So will these two ideas remain united? Yes or no? No. So that means the ideas are not united. What you have to do whenever you write a question answer, whenever you write the answer of a particular question, at that time what you need to do, you need to keep the ideas in your head in an arranged way as well as in a united way. ए तीनटा जिनस करदेले तुम गोटे क्वेश्चन रो आंसर प्रॉपर्ली लिखि पारिबो. ए तीनटा अपार्ट देयर आर अदर फैक्टर्स which are also included while writing question answer. What are the other factors? We will discuss now. Point number 4. Grammatically correct. What is the meaning of grammatically correct? The meaning of grammatically correct is, acha students, first we will focus on the meaning of grammar. What is the meaning of grammar? When you write a sentence, at that time what happens? Your sentence contains of two parts, subject and a predicate. Yes or no? Your sentence absolutely and 100% contains of these two parts. One is your subject, another is your predicate. Rest other things which are included in a sentence, or yes, in a sentence is what? A verb, a noun, an adjective, XYZ. A noun and a verb is obviously 110% included in each and every sentence. Getting my point? तो एटी मु कौन लिखिली? Your sentence should be grammatically correct. जदि तुमे आइडियाज ठीक निज माइंड रे डेवलप करके गुटे क्वेश्चन रो आंसर लिखुछ, but your answer is grammatically incorrect, then your answer will be wrong. Grammatically सबु बेले ट्राई करिबो करेक्ट सेंटेंस लिखिया को. एटा केमती तुमे प्रैक्टिस करिबो? छुआ माने समस्त घरे न्यूज़पेपर आसुची. Yes or no? आसुची. Difference is that either you are getting the newspaper in your mother tongue, that is Odia. Very less people get the newspaper in their what? In their other languages like Hindi or English. But I suggest you to build your vocabulary. ए जिनसोटा केमती करेक्ट आसीबो जतले तुमे प्रैक्टिस करिवो. Yes or no? प्रैक्टिस करिवो केमिति? Take the newspaper, telegraph जोटा आसुची, English newspaper, or if you are not getting newspaper at your home, then you have a mobile. Everybody is having a mobile. You are having Google. Go to the Google, download the e-newspaper, that is the telegraph English newspaper. Take any of the pages, जे कोनोसी पेज को select करो and take a small paragraph. कौन लिखा है जी, कौन विषय वस्तु ऊपर लिखा है जी, केमती सेंटेंस रे लिखा है जी, देखिबो. देखि साला परे फर्स्ट माइंड रे स्ट्राइक करिवो, बुझोनी कोनटा लिखिला, सब अलग अलग वर्ड लिखिची. जो वर्ड गुडा बुझी हेलानी सेही वर्ड गुडा को अंडरलाइन करिवो, कॉपी पेस्ट निजो पेपर रे निजो खाता रे लिखिबो. Then how you will develop to write a sentence?
you have already come to know what the paragraph is about. Newspaper से paragraph टा उठे सारला परे तुम already जानी छो जे paragraph रे को विषय उपरे लेखा हेची, but किछि words तुमको बुझा सुनी कौन करिवो ऑक्सफोर्ड रो पॉकेट डिक्शनरी गुटे किनिबो 100 रु 200 टंका नबो ऑक्सफोर्ड रो पॉकेट डिक्शनरी से सेम वर्ड्स गुडा को कौन करिवो तमे डिक्शनरी रे घांटीबो जे यार माने कौन जेतरे तार माने जानि जीवो एटा देखो दीटा तुमको फायदा मिलला यू गॉट टू बेनिफिट्स व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट यू हैव कम टू नो मेनी वर्ड्स तुमको बहुत वर्ड्स जाने को मिलला जोटा कि तुम इन फ्यूचर जेतरे क्वेश्चन आंसर लिखिबो कि जेतरे एसे राइटिंग लिखिबो कि जेतरे रिपोर्ट राइटिंग लिखिबो व्हाटएवर यू विल राइट एट दैट टाइम यू कैन यूज दैट न्यू वर्ड्स if it fits into that situation जदि सेही सिचुएशन रे से वर्ड्स गुडा फिट करूची ता माने जान सला पर डिक्शनरी रे तमे ताको पुट करि परिबो yes or no yes after that what will happen is what I said how you will make your sentence grammatically correct you will make your sentence grammatically correct by practicing writing sentence from where you will get sentences take the mobile go to the Google download the Telegraph that is English newspaper take any of the pages take a single paragraph try to understand what it is written try to understand कौन लिखा है को विषय पर लिखा है जो वर्ड्स गुडा बुझी पारलनी से वर्ड्स गुडा कौन करिवो गुटे खाता रे लिखिबो तापरे कौन करिवो से वर्ड्स गुडा को डिक्शनरी रे सर्च करिवो ता माने जानी गलो जानी सरला परे कोन two benefits you have come to know first is you have come to know how to write a sentence किछि ideas मिल जाइथिबो second is what second is you have come to know across few words those words you can use in future towards writing essay report writing question answer paragraph writing xyz so this is the method how you can use your like brain and make your sentence grammatically correct. Coming to the fifth point, avoid spelling mistakes. कौन लिखली जोटा कि तुम्हारा फेवरेट काम तुमर फेवरेट काम कौन स्पेलिंग मिस्टेक करवा यस और नो एटी कौन लिखाला अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स फॉर एग्जांपल हमर क्वेश्चन कौन थिला आमे एबे एटी कौन पढुछु आमे पढुछु हाउ वी विल डेवलप आइडियाज इनटू अ पैराग्राफ और सेंटेंसेस गोटे पैराग्राफ जतले हमें लिखुछु वेदर इट इज अ क्वेश्चन आंसर और एसे हमको कुछ आइडियाज दरकार सेही आइडियाज को बिल्ड करिया पई व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू नो सेही विषय रे हमें पढुछु ओके Okay, so what was our question? Our question was where does Ram stay? अच्छा ग्रामेटिकली करेक्ट केमती करियो तुम जानि गलो एबे हमें जो पॉइंट ऊपर आसिलु सेटा होची अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स फॉर एग्जांपल मु सब किछ ठीक लिखी छी ओके राम स्टेज हियर 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 बालेश्वर ओडिसा राइट बालेश्वर स्पेलिंग भूल अछि ओडिसा रो स्पेलिंग भूल अछि इवन जो जागाटार ना भी मु लिखी छी जोठी राम रहूची तारो भी स्पेलिंग भूल अछि ताहले फॉर एग्जांपल जदी से आंसर रे 2 मार्क अछि जदी से आंसर रे केते मार्क अछि 2 मार्क अछि तीनटा स्पेलिंग मिस्टेक मई 1 मार्क डिडक्ट करा हुए जानि थिबो एटा according to the rule of boards if you are making 3 spelling mistakes then your teacher is supposed to deduct 1 mark yes or no according to that if जदि तमर आंसर टा 3 लाइन रो आ तमे 4टा स्पेलिंग मिस्टेक करिचो केते मार्क कटिबो 1 मार्क तो श्योर कटिबो 2 रु चली गला 1 रहिला केते 1 आ जदि से टीचर रो मूड हैला जे ना 4टा स्पेलिंग मिस्टेक हे जी अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन 6टा स्पेलिंग मिस्टेक हेले 2 मार्क कटिबो किंतु जदि टीचर रो मूड खराब थिबो ताने से कोन करिवो सेठी चाहिले गुटे हाफ मार्क भी काटी देई पारे तने बळिला केते आ रहिला कोन किछि नै आ तने कोन तमे पाइबो सो मेक श्योर दैट अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स हाउ वी विल अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करो
मु देखी क्लास नेला बेले भी कौन प्रॉब्लम हुए तुमरो प्रोनाउंसिएशन रे प्रॉब्लम हुए गुटे प्रोनाउंसिएशन थिबो सेटा को जेमति कि इन्फॉर्मेशन कौन कहूची मु इन्फॉर्मेशन मु बहुत छुआ मान को देखी प्रोनाउंसिएशन रे मिस्टेक हुए इन्फॉर्मेशन को से कह देबे इन्फॉर्मेशन which is wrong, absolutely wrong. Information, what I'm telling, information. Yes, you are supposed to pronounce it as information. Pronunciation ठीक रहिले automatic spelling ठीक रहिबो जदि मु इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन कहिबी इन्फॉर्मेशन ठीक अछि ताले मोर कोन आसीबो स्पेलिंग ता आई एन एफ जगह पी आसीबो केना मु तो कहूची इन्फॉर्मेशन यस और नो इट शुड बी इन्फॉर्मेशन एफ ओ आर प्रोनाउंसिएशन ठीक रहिले स्पेलिंग मोर ठीक आसीबो तापरे आ गुटे कहूची फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ओके ट्रांसफर बहुत छुआ मन अछंती कहबे ट्रांसफर transfer it is not transfer it is transfer if you are pronouncing it as transfer then your spelling will come as TRANSPHER right and if you are pronouncing it as transfer then it will be automatically FOR so एटा तो हमें जानिया को पाउचू that it is very important to get the spellings correct you have to pronounce that से जिनसटा को कहिबा बहुत ही important से जिनसटा को करेक्टली प्रोनाउंस करवाटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू सेम जिनस घरे रहूच मोबाइल अच्छी गूगल अच्छी गुटे वर्ड ठीक अच्छे फॉर एग्जांपल सेम इंफॉर्मेशन ठीक अच्छे पुट करदेव गूगल रे देखिए गोटे वॉइस ऑप्शन थाए साइड रे माइक रो गोटे ऑप्शन थिबो हेडफोन्स इंसर्ट करबो से वॉइस को क्लिक कर साला परे तार वॉइस नोट चली आसीबो माने केमती प्रोनाउंसिएशन होउची से स्पीकर टा को चिपी देले तमे सुनिबा को पाइबो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कोन छुआ माने मोर गुटी एडवाइस तमे बे घरे रहूछ फिजिकल क्लासेस तमे करि पारुनो सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि यू यूटिलाइज द टाइम इफ यू डोंट यूटिलाइज द टाइम देन यू पीपल विल बी you people will be in loss because आमे एबे जूम माध्यम रे पढ़ाई दउछु बट आमे जहा पढ़ौछु आमे देखि परछु कि तमे बुझी परछो कि नाही कि तुमको सेति कि बुझा जाउची कि नाही yes or no there is a doubt clearing session in that session what you need to do unmute करिवो raise hand करिवो पचारिबो बट तमे खाता रे कोन लेक्चर छडा हम देखि परछु कि मु देखि पारनी so it is very important that you utilize the time so coming to our topic how you will avoid spelling mistakes to avoid spelling mistakes it is very important that you pronounce the words correctly how you will know the correct pronunciation madam how आमे pronunciation ता केमती हबो केमती जानिबा एबे त आमे सब घरे रहउचे google the word take a particular word from when आमे कोठू वर्ड उडा नबा सेही टेलीग्राफ सेही पेपर कि जे कोनोसी इंग्लिश बही जोटारे इंग्लिश रे लिखा हिची जे कोनोसी पैराग्राफ जे कोनोसी स्टोरी बुक हो नोवेल हो किछि भी हो गोटे पैराग्राफ नेलो किछि वर्ड जार प्रोनाउंसिएशन तुमको लागुची जे मते देखिया कथा गूगल करिवो वॉइस नोट को जिवो हेडफोन्स क्लिक करिवो प्रोनाउंसिएशन सुनिबो कौन जानिया को पाइबो सेटारे जे हां करेक्टली प्रोनाउंस करले इफ यू आर प्रोनाउंसिंग अ पर्टिकुलर स्पेलिंग इन अ करेक्ट मैनर यू विल अल्टीमेटली गेट द correct output you will ultimately get the correct spelling if you are pronouncing a particular word in a wrong way then you will get the spelling also into a very wrong way पांचटा पॉइंट हमें डिस्कशन करि सारलु फोर्थ पॉइंट थिला ग्रामेटिकली करेक्ट होबा कथा गुटे सेंटेंस रे निहाती भाव रे सब्जेक्ट थिबो गुटे प्रेडिकेट थिबो गुटे नाउन थिबो गुटे वर्ब थिबो गुटे प्रीपोजिशन कंजक्शन कनेक्टिव नेक्स्ट रे आसुची लास्ट सबुठु इंपोर्टेंट पॉइंट जेटा भी तुम पिला माने करिया को बहुत भल पाओ कौन सेटा राइट इन अ गुड हैंडराइटिंग कौन लिखली राइट इन अ गुड हैंडराइटिंग पिला माने तम मानकर हैंडराइटिंग मु कहूनी बहुत खराब ओके बट गोटे क्वेश्चन आंसर लिखला बेले किसी जिनस हमको माइंड रे रखा को पड़े व्हाइल यू स्टार्ट टू राइट अ सेंटेंस यू शुड बिगिन द सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर यस और नो जते बेले भी मुटे ऐसे लिखुची गोटे क्वेश्चन आंसर लिखिबा को स्टार्ट करूची मु कोन करबी मु से क्वेश्चन आंसर रो स्टार्टिंग लाइन ता बिगिन करबी जते बेले सेते मु कोन करबी आई विल राइट दैट
particular first word of my sentence in capital letter. माने for example एटी जे अच्छी where does Ram stay? Ram stays. Ram टा छोट अक्षर रे नुहे बड़ अक्षर रे हबो. Ram stays here full stop. कौन कहली? Full stop. गुटे सेंटेंस जते बेले तमे एंड करिवो full stop टी दबो. Where the full stop is used? The full stop is used where you end the ideas of a sentence. Full stop कोठी यूज हुए तो एबे जे हमें कौन जानिया को पाइलु जते बेले भी आमे गोटे सेंटेंस बिगिन करिवु लेखिया पई we will start writing in capital letter. While we end that sentence, what we will do, we have to write a full stop. Sorry, we have to give a full stop while ending that sentence. While ending that sentence, when we complete giving information about the question which is asked, at that time what we do, we put a full stop. What is the meaning of full stop? Full stop means where it is placed when we end writing ideas about a particular question, answer or a essay or a sentence. Okay, at that time we place a full stop. Question mark कोठी place हुए जते बेले we ask something, yes or no? When we ask something, at that time आमे किछि पचारुछु जते बेले, at that time we use question mark. Okay, there is another issue which is known as comma. Where we use comma while writing a sentence. Okay, if we break our sentence into two parts, for example, if the sentence is a bit long sentence, ठीक है, लंबा sentence अछि, 3 लाइन रो sentence अछि, ठीक अछि, ताले निहाती भाबरे सेठी मु कोठी गुटे ब्रेक नै थिबी. Comma is placed where you take a break in between that sentences. So what I said, when you begin writing a question answer, you should begin the first word of the sentence in what? In capital letter. Yes or no? Then when you are ending the sentence, at that time what you need to do? You need to put a full stop because you are ending the idea of that sentence. Okay, the next thing is what? When you put a comma is placed. A comma is placed when you take a break in between the sentences. For example, if your sentence is little long, तम sentence टा टिके बड़ अछि, 3 लाइन रो sentence अछि, तो निहाती भाबरे से sentence टा लेखिला बेले ideas को put कला बेले से sentence रे तमे कोठी ना कोठी टिके break नै थिबो. सेही break रो point रे ही you are supposed to put a comma. एटा ही होची विषय. ए 6टा पॉइंट जदि तमे मन रखि देबो, या पूर्व 3टा पॉइंट लिखिथिली आ एबे 3टा पॉइंट लिखिली, जदि ए 6टा पॉइंट तमे मन रखि देबो, then it will be very easy for you to write a question answer, or it will be very easy for you to write a sentence. So it is advisable for your students, for the students whoever is listening to me, go to the Google. Your homework is you will go to the Google, download the e-newspaper, that is Telegraph. If you don't want to do it from the Google, take any of the English story books or novels जदि तुम पाखरे घरे अछि, जदि अवेलेबल नाही, go to the Google को जीबो, e-newspaper Telegraph डाउनलोड करिबो, जे कोनोसी पेज सिलेक्ट करिबो, सेटा को जूम करिबो, करिकि गुटे पैराग्राफ नबो, नै साला परे से पैराग्राफ टा को पढ़िबा साला परे what you need to do, किछि तो गोटे आइडिया चली आसीबो जे हां ई पैराग्राफ रे एई विषय ऊपरे कुहा हेछि कि कुहा होछु. तापरे कोन होबो, माइंड स्ट्राइक करिवो किछि वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स, बिकॉज इट इज मु भी पढौछि, मो पई भी किछि वर्ड्स न्यू हेइ थाइ पारे. Okay, so you will come across few words. When you come across few words, you won't be able to understand the meaning. For that, what you need to do, I told you, go and buy a Oxford dictionary. एबे तो बही दुकान I guess खुला थिबो किछि जगह रे, जदि भी खुला नाही, ऑनलाइन Amazon रु तमे किनि पारो, 100-200 टंका भितरे ही पड़िबो ऑक्सफोर्ड रो पॉकेट डिक्शनरी. ठीक अछि, तो काम कोन करिवो, जा पाखरे डिक्शनरी अछि बहुत भलो कथा, जहा पाखरे नाही, it is advisable everybody should get a Oxford dictionary. Oxford dictionary एइति by emphasis देखि Oxford कहूची
कहीं मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स रो भलो डिस्क्रिप्शन करी थाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जदि जहाँ पाखे डिक्शनरी अच्छी किसी इश्यू ना से डिक्शनरी यूज कर और जो डिक्शनरी ना गो फॉर बाइंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो मुझे कौन देली करिया गोटे पैराग्राफ नब से न्यूज पेपर पैराग्राफ टाक पढ़ी सारापर किसी वर्ड्स तुमको माइंड रे आसीबो नाही किछि बुझी परिबो नाही किछि वर्ड्स को जानि परिबो नाही सेटा को कोन करबो सेही वर्ड्स गुडा को खाता रे लिखिबो तापर तार मीनिंग डिक्शनरी रे काढिबो काढी सारला परे देखिबो जे सेही वर्ड रो मीनिंग कोन एटारु कोन हबो टू थिंग्स विल कम आउट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो हाउ टू डेवलप एंड राइट सेंटेंसेस सेंटेंस केमती लिखा जाए सेटा टिके टिके जानि जिवो तापर आउ कोन गुटे जानि को पाइबो किछि नुवा वर्ड्स तमे शिक्षा को पाइबो जोटा कि तमे इंप्लीमेंट करि पारिबो इन योर फ्यूचर जे कोनोसी जगह रे क्वेश्चन आंसर रे हो गुटे वर्ड अछि से वर्ड रो सिमिलरली जेमते गुटे वर्ड अछि सिमिलरली रो माने मु जानि छि अलाइक दीटा जिंस को सेम सेम बुझिया पई हमें सिमिलरली यूज करू यस और नो यस तो सिमिलरली को मु जे कोनोसी जगह रे पुट करके यूज करि पारिबी जदि मु सिमिलरली रो माने जानि थिबी सो एतिकित काम मु तुमको दउछि होप दिस क्लास इज बेनिफिशियल फॉर यू थैंक यू